मारिया। जी मारिया, शुरू करें क्योंकि हम पहले ही काफी लेट हो गए। जी मैडम। जी शुरू करें। जी मैडम। Mrs. Zartashiya, wife of Mr. Hamza, 21 years of age, housewife, metric pass by education, married for 9 months. It's a cousin marriage. Blood group is not known to the patient. Primary gravida. Her last menstrual period is 22nd of November 2021, making her duration of pregnancy is 37 weeks and 1 day, and expected date of delivery is 29th of August 2020, resident of Nishtar Colony, Multan, presented through outpatient department with complaint of her abdomen is not growing according to her gestation from last 1 month. My patient conceived spontaneously during regular menstrual cycle. She was sure of date. Her urine for pregnancy test was carried out at home and into the hospital in the month of the January that corresponds to her gestation. My patient does not have a history of fever, flu, rash, nausea, vomiting, pervaginal discharge, and pervaginal bleeding in first 3 months of her gestation. Her dating scan was carried out in at 1.5 months of her gestation in the month of the January, and she was informed that there is a single alive intrauterine pregnancy. My patient has a history of folic acid intake with good compliance in first 3 months of her gestation. Her quickening started at fifth month of her gestation, and her fetal movements are normal throughout her pregnancy. Her anomaly scan by consultant radiologist was carried out to detect gross detectable anomalies, and she was reassured about fetal well-being. My patient has a history of iron and calcium intake from last 6 months with good compliance. She has a no history of increased thirst, increased urination, and increased appetite, and she has a no history of increased frequency, urgency, or burning micturition. At 7 months of her gestation, patient has a complaint of lower abdominal pain, which was continuous, dull, radiating towards back, moderate in intensity, not associated with urinary frequency, urgency, burning, micturition, pervaginal discharge, bleeding, diarrhea, vomiting. And then her ultrasound abdomen her ultrasound KUP was carried out, and some blood test was also carried out, and she was informed that that is a normal condition and was settled after delivery of the baby. At 8 months of gestation, patient has felt her abdomen is not growing according to her gestation, and then she consulted with a doctor, where her ultrasound was carried out, and she was informed that her baby is small in size, but water around the baby is normal. Although every time her in antenatal visit her blood pressure was checked, and according to the patient that was normal, and my patient does not have a history of headache, nausea, vomiting, blurring of vision, epigastric pain, dizziness, no history of any specific drug intake, no history of any chronic illness, clots, history of any previous history of clots in leg, no history of migraine. Her diet, although my patient has a diet low in fruits and vegetable. My patient has a no history of weakness, easy fatigability, and lethargy. Her husband's height and build is normal according to patient, and she is non-smoker, non-addict to any drug. No history of anomalies in the family. Although she have a cousin marriage and her anomaly scan is normal. My patient does not have a history of vaginal discharge and bleeding, and on according to the patient on scan, her placenta is normal looking. Steroid is not giving to the patient, and patient is presented through outpatient department, and further plan of the management is not discussed with the patient. My patient, her age of the menarche is 13 years of the age. Her menstrual cycle was 5 to 6 per 30 days with no history of pain during menstruation and pain during coitus, intermenstrual bleeding, postcoital bleeding. Pap smear has never been taken, and couple never practiced any contraception. My patient has no history of hypertension, diabetes, cardiovascular disease, or any anomalies in the family, and no history of any surgical intervention in her done previously, and no family history of hypertension, diabetes, cardiovascular disease. And she has a normal dietary habits, normal dietary bowel and bladder habits.
She is a non-smoker and not addicted to any drug, and she is not allergic to any drug. Her husband is a banker. She lives in her own house, and her necessities of the life are met with ease. On examination, BMI of 23 kg per meter square with pulse rate of 90 beats per minute and blood pressure of 110 by 70 millimeter of mercury. Her respiratory rate was 18 breaths per minute and her temperature was 98.6 Fahrenheit. She is not looking paler. Cyanosis, jaundice, thyroid is not enlarged, edema is not present, the lymph nodes are not palpable, orodental hygiene is satisfactory, and spine is normal. On chest is normal. There are normal vesicular breathing with no added sound, and apex beat is at 6 intercostal space medial to mid clavicular line. With first and second heart sound is audible with no added sound. Both breasts are symmetrically enlarged with no mass palpable in all the four quadrant of both breasts, and nipple is everted. On abdominal examination, abdomen is protuberant, umbilicus is central, moving with respiration, no striae, scar mark, visible pulsation is present. Her symphyzofundal height is 34 centimeter, longitudinal like a phallic presentation. Presenting her head is 5 by 5 palpable. Liquor seems to be reduced, and her estimated fetal weight is 1.75 kg to 2.25 kg, and her fetal heart rate was 146 beats per minute. जी मैडम हो गई अब अच्छा, समरी सुनो. हाँ जी, समरी सुनाएं. 21 years of age, married for 9 months, primary gravida at gestational amenorrhea of 37 weeks and 1 day with complaint of her abdomen is not growing to her gestation. Her general physical examination is unremarkable. On abdominal examination, her symphyzofundal height is 34 centimeter, longitudinal like a phallic presentation, head is 5 by 5 palpable, liquor seems to be reduced, and estimated fetal weight is 1.75 to 2.25 kg, and fetal heart rate is 146 beats per minute. एस्टिमेटेड फीटल वेट, क्लिनिकल एस्टिमेटेड फीटल वेट जो है वो 1.7 टू 2.5 केजी आपने बताया. 2.25 kg. 2 to 2.5 केजी. एस्टिमेटेड फीटल वेट की रेंज आपने क्या बताई है? जी मैडम मैंने बताइए 1.75 टू 2.25 kg. ये मैडम जो रेंज 2.5 kg क्लिनिकली से. जी ठीक मैडम. है, लेकिन 1.75 से 2.5 केजी, डज इट सीम रियल? मैडम मतलब इतना जो नो में फाइन प्रिसीजन के साथ आपने जो बताया 1.75 से 2.5 केजी तक. 2.25 मैडम मैंने बोला है कि मतलब 2 मुझे पॉइंट, चलो 2.5 से कम का लग. 2.25 तो और भी इसमें क्वेश्चनेबल हो जाता. 1.75 से 2.25 ऐसा ही है ना? तो जी मैडम. क्लिनिकली क्या हम इतना ये पॉइंट्स में इस तरह से कर सकते हैं? मैडम मुझे ना 2.5 मतलब 2.5 किलो के बच्चे से कम लग रहा था उसका. तो आपने उसको 2.25 कर दिया. जी मैडम. इतना प्रिसाइजली जब आप बताते हैं तो आपकी क्लिनिकल स्किल्स पे भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि ये इतना माइनर फ्रैक्शन के साथ बताना कि 1.75 से 2.25 इज अ रियली सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि इसमें जो एवरेज जो रेंज होती है क्लिनिकल एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट पे, वो तकरीबन 0.5 केजी की आप उसमें मार्जिन के साथ बताती हो. मैडम 1.75 से 2.25 में 0.5 का मार्जिन आ रहा है. मैडम मुझे ना ऐसे लग रहा था कि ये बच्चा जो है ना 2.5 केजी से कम का है, लेकिन 2 केजी तक का होगा, तो इसलिए मैंने ये रेंज बताई. हेलो.
सॉरी इंटरप्शन हो जाती है बार बार, ये इंटरनेट की वजह से। तो हम जो बात कर रहे थे वो क्लिनिकल एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट, बिकॉज व्हेन यू असेस द वेट, फीटल वेट क्लिनिकली, तो उसमें रेंज 500 ग्राम्स तक की होती है। सो यू हैव टू मेंशन इट लाइक दैट कि 1.5 to 2 kg हो या 2 to 2.5 kg हो, because on clinical estimation fetal weight ठीक है। 20% error rate, जो कि कम हो के 10% तक रह जाता है ऑन अल्ट्रासाउंड असेसमेंट। तो इसलिए इसमें जी मैडम। 1.75 वाली फिगर इनअप्रोप्रिएट है। तो इसमें आप इसको या तो 2 to 2.5 kg करें, जो कि मेरा ख्याल है सिम्फिजियो फंडल हाइट 34 वीक के साथ ज्यादा बेहतर कोइंसाइड करेगा, या फिर इसको 1.5 to 2 kg करें। तो जी मैडम। इसलिए इसको इतना प्रिसाइज और मिनी फिगर्स में आप 2 नहीं से बता। 2.5 केजी। ठीक है, चले अब आपने एक तो हिस्ट्री को हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। हिस्ट्री में तकरीबन आपने सारी चीजें पूछ ही ली कि इसमें क्या क्या वजह हो सकती है अपेरेंटली फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की। बट इन अ प्राइमरी ग्रेविडा के पेशेंट खुद से असेस कर रही है कि उसकी एब्डोमिनल ग्रोथ इतनी ही नहीं है, वो थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव कंप्लेन बन जाती है, और उसमें उसकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी भी कम हो जाती है। Anyway, when you examined, the situation came out to be reduced fetal growth because the symphysiofundal height was almost 3 weeks shorter than the actual duration of gestation. लेकिन आपने ये नहीं बताया कि what was the reason for her admission in the hospital at 37 week. Was she admitted for the मैडम evaluation of the small for fetal size, or was she having any symptoms otherwise? मैडम शी वाज नॉट एडमिटेड, शी वाज अ ओपीडी पेशेंट अच्छा, ओपीडी एंड पेशेंट के तौर पे शी आपने केम admit फॉर evaluation। ठीक जी है। मैडम। तो इसमें दूसरी चीज ये कि लाइकर रिड्यूस्ड को आपने असेस कैसे किया क्लिनिकली? मैडम क्लिनिकली फीटल पार्ट्स पैल्पेबल। फीटल पार्ट्स तो पैल्पेबल होते हैं एडिक्वेट लाइकर में भी। जी मैडम, एडिक्वेट लाइकर में इतने प्रोमिनेंट पैल्पेबल नहीं होते जिस तरह मुझे उसके फीटल पार्ट्स पैल्पेबल हो रहे थे ना। और हम्म, अच्छा। और मैडम इसके हम्म, उसकी हल्की पेशेंट का 23 बीएमआई था, थिन लीन पेशेंट थी, लेकिन उसके फीटल हम्म, पार्ट्स अच्छे पैल्पेबल हो रहे थे और हम्म, लाइकर रिड्यूस ही लग रहा था। अच्छा। दूसरी चीज ये कि आपने इसकी हिस्ट्री में बताया लोअर एब्डोमिनल पेन थी, लेकिन उसमें क्या फाइनल डायग्नोसिस क्या बना, उसकी ट्रीटमेंट कैसे हुई, फिर केयूबी का अल्ट्रासाउंड भी हुआ, इन सब की जी मैडम। रीजन नहीं हमें पता। जी मैडम, आई हैव टोल्ड दैट लोअर एब्डोमिनल पेन था और उसके साथ सारी कॉजेज को रूल आउट किया था। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बर्निंग, मिक्सचरेशन, हम्म, परविजनल डिस्चार्ज, हम्म, ब्लीडिंग, डायरिया, वॉमिटिंग एंड हम्म, अल्ट्रासाउंड केयूबी भी हुआ था और सम ब्लड टेस्ट भी हुए थे कि मोस्ट हम्म, प्रोबेबली आरएफटीज होंगे। और शी वाज रीअश्योर्ड दैट दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन इन प्रेगनेंसी दैट वाज सेटल्ड हम्म। after the delivery of the baby and that pain is also settled without any type of medication। अच्छा, चलो अब हम तो रैपिडली मैडम मूव मोस्ट करते हैं प्रोबेबली ये कि उसको पेन जो होगा वो मस्कुलर पेन। चलो जी मैडम। ठीक है। अब इसमें क्या डायग्नोसिस आप क्या इसमें बनाओगे? डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड द फाइनल डायग्नोसिस। क्या फाइनल डायग्नोसिस अभी बन सकता है जी मैडम। क्या? नहीं मैडम, फाइनल डायग्नोसिस अभी नहीं बन सकता हाँ, अभी नहीं मैडम। बन सकता। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, differential diagnosis is gestational हाँ, amenorrhea of 37 weeks and 1 हाँ, day with small for gestational age baby, हाँ, and हाँ, second one is gestational amenorrhea 37 weeks with intrauterine growth restriction. हम्म, Third one is oligohydramnios, and हम्म, fourth one is mistaken dates, and हम्म। fifth one is if her head is engaged, lightning जिसे कहते हैं। वो हेड तो आपने बता दिया ना, वो तो आप उसको डालोगे ही नहीं क्योंकि हेड वाज 5 जी by 5 मैडम। palpable. So not due to head जी मैम, यस engagement. मैम, हेड भी 5/5 पेपर थे और शी वाज श्योर ऑफ इट। ठीक है। तो ये वाली जी मैडम। चीजें जो जो चीज आपने एक्सक्लूड कर दी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशन, वो आप उसके डिफरेंशियल में नहीं डालोगे आफ्टर एग्जामिनेशन। ये चीजें आप डाल सकते हैं आफ्टर हिस्ट्री। लेकिन जब आपने एग्जामिनेशन कर लिया देन यू नो एवरीथिंग, तो उसमें कुछ डिफरेंशियल आपके निकल जाएंगे। नाउ हाउ यू ठीक विल है। प्रोसीड फॉर evaluation for which she has come to the hospital?
अब 37 प्लस वीक्स पे है, तो इसकी एवेल्युएशन आप क्या करोगे? First of all, I will do her baseline investigation and specific हम्म, investigation I did. Baseline investigation include blood group RH factor, which हम्म, was O positive. मैडम साथ साथ labs बताती जाऊँ हाँ जी बता दीजिए। या मैडम आप देंगी? Then a complete blood count, including hemoglobin in gram per deciliter, that was 11.2 gram per deciliter. Total leukocyte count, that was 7,000, and her platelet count 2,49,000. And hepatitis B surface antigen and anti-HCV both are negative. And fasting blood sugar level and 1 hour postprandial. Urine routine examination for microscopy and biochemistry, including pus cell, हम्म, protein, and glucose. Glucose and हम्म, protein is nil, and pus cell was 3 to 4 pus cell. हम्म, And then I need her dating scan to confirm my dates and duration of pregnancy. That was also available. That corresponds to 37 weeks. And then anomaly scan to detect gross detectable anomalies. That was also available. That was normal. हम्म, And I need recent scan for presentation live biparietal diameter, femur length, हम्म, estimate AC, estimated fetal weight, and placental localization. हम्म, And then madam I need मतलब उसके बाद her Doppler scan was also carried out, and where her that was normal, हम्म, and Liker volume was also normal. मैडम उसकी ना क्वांटिफिकेशन नहीं हुई हुई थी, लेकिन लाइकर एडिक्वेट लिखा हुआ था। क्योंकि पहले भी जो इसका एंड हाँ, पहले भी जो इसका एक अल्ट्रासाउंड था उस पे आपने लाइकर नॉर्मल ही बताया था मुझे, और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन थी जी along with जी that, मैडम। लाइकर नॉर्मल और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। हाँ जी। जी मैडम, इसके एक स्कैन के ऊपर है AFI 8 लिखा हुआ था ना, बस हम्म, और आई नीड आल्सो ideally I need previous 2 scan of at least 2 to 3 weeks apart to confirm my diagnosis. हम्म। And as लेकिन my अब patient is more आफ्टर than आफ्टर नोइंग द रिपोर्ट, ठीक है, आफ्टर नोइंग द रिपोर्ट आपकी क्लिनिकल एस्टिमेशन थी कि लाइकर रिड्यूस है, लेकिन लाइकर ठीक आ गया ऑन अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वो उसमें थोड़ा सा वो हो सकता है इस जी तरह मैडम। से क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे एरर, लेकिन आफ्टर नोइंग द रिपोर्ट ऑफ जी मैडम। रिसेंट अल्ट्रासाउंड, और जिस पे उसमें जो है वो डेटिंग स्कैन के हिसाब से भी 37 वीक्स है, AFI इज ओके, एंड व्हाट मैडम फीटल AFI नहीं। बायोमेट्री? जी, AFI जी मैडम। is 8, that is normal जी मैडम। at 37 weeks. अब जी दूसरी मैडम, चीज ये लोअर है लिमिट कि ऑफ नॉर्मल है। fetal AFI 8 at 37 week is normal. Lower limit of normal is 5 at term. ठीक है, इसलिए जी इसको मैडम। हम एडिक्वेट कहेंगे, लोअर नॉर्मल लिमिट नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल है, एडिक्वेट है। अब ठीक है। सेकेंडली जो दूसरी चीज है कि फीटल बायोमेट्री में आपको यूजुअली ये तो बताया जाता है कि बीपीडी कितना है, फीमर लेंथ कितना है, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द जेस्टेशनल एज योर ऑन योर ओन। इसमें इसकी फीटल बायोमेट्री के हिसाब से जेस्टेशनल एज कितनी थी अभी जो रिसेंट अल्ट्रासाउंड है जिस पे ये सारी चीजें आप बता रहे हो, जी अकॉर्डिंग मैडम, वो 33 वीक्स बन रहे थे। 33 वीक्स बन रहे थे, इसमें कौन सा पैरामीटर है विच वाज लैगिंग बिहाइंड? मैडम उसके ना सारे पैरामीटर्स, उसका BPD, फीमर लेंथ और AC सारे जो है ना लेगिंग बिहाइंड थे। यानी सारे के सारे एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, फीमर लेंथ एंड हेड सर्कमफ्रेंस या बीपीडी जो भी हुआ इसका, वो सारे 33 जी वीक्स मैडम। को करेस्पॉन्ड कर रहे थे। जी मैडम 33 वीक्स को सो कॉरेस्पॉन्ड कर व्हाट इज योर डायग्नोसिस नाउ आफ्टर नोइंग द रिपोर्ट ऑफ रहे दिस एज रीसेंट? ऑन स्कैन। हम्म। जी मैडम, अब एज आप ऑल द अब पैरामीटर्स आपकी आर। कंप्लीट होगी, आपकी कंप्लीट होगी सारी इन्वेस्टिगेशन, या कुछ और आप करवाना चाहते हैं? मैडम बस कंप्लीट होगी, जब एडमिशन होगा तो फिर उस पर एडमिशन CTG की जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, और इसमें डॉपलर फ्लो भी आपने करवाया था? मैडम डोपलर फ्लो उसका हुआ हुआ था, दैट वाज नॉर्मल। ठीक है, चलो, अब ये सारी रिपोर्ट्स आपकी कंप्लीट
हो गई, अब इसमें आपका डायग्नोसिस, फाइनल ऑफ डायग्नोसिस आपका बन जाना चाहिए। क्या था? जी मैडम, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन जो है ना मैडम, गेस्टेशनल मेनोरियो 37 वीक्स विद स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। Madam, because her स्मॉल फॉर Leica volume is adequate, Doppler scan is normal, and her all the parameters are uh, uh, less than that of the अब देखो, gestation. स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज इज बेसिकली उस तरह से डायग्नोसिस तो है, लेकिन इसमें व्हाट टाइप ऑफ स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इट। और इसमें क्योंकि इसमें अगर लाइकर भी ठीक आ रहा है, जी डॉपलर भी मैडम, ठीक आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल, ठीक है, और क्या वजह हो सकती है? मैडम, that can be a constitutional small fetus, but all the, जी मैडम, हम्म और मैडम मैम ये सिमेट्रिकल आईयूजीआर नहीं होगा? सिमेट्रिकल आईयूजीआर के अंदर दूसरी क्रोमोसोमल। अच्छा, ठीक है। But if it would be a case of some chromosomal anomaly, which you think may be a cause for symmetrical IUGR, then up till 8 months, her fetal growth was okay. मैडम, बल्कि 7 months तक। उसके जी मैडम, बाद जो है fetal growth that reduces। is least likely because her, हम्म जी मैडम, मैडम हाँ जी। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे मोस्ट लाइकली जो है ये स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी में कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल फीटस आ सकता है। एंड व्हाट इट मींस कॉन्स्टिट्यूशनली क्यों हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनली मैडम, आई स्मॉल हैव की टेकन द रीजन हिस्ट्री क्या है? हर madam, if her father and mother both have her height is मतलब less than that, हम्म नॉर्मल लोगों से कम हो उनकी आपके ख्याल में अगर क्या हाइट, ऐसा है इसमें? ये रीजन नहीं। आई हैव टेकन द हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम द पेशेंट अबाउट हर हस्बैंड, हर हाइट एंड वाज आल्सो नॉर्मल। BMI उसका 23 है। आर यू सेटिस्फाइड विद इट? चलो, आर दीज द ओनली रीजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबीज? मैटरनल हाइट एंड वेट या पैटर्नल हाइट एंड वेट, क्या यही रीजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबीज की हो सकती हैं? जी मैडम, व्हाट एल्स शुड बी लुक फॉर? तो मैडम सिमेट्रिकल आईयूजीआर अगर है तो उसमें हम क्रोमोसोमल एनोमलीज और उसका भी सोचेंगे, इन्फेक्शंस का। क्रोमोसोमल तो आपने आउट कर दिया ना पहले ही। और जी कौन सा मैडम, जी इन्फेक्शन? मैडम, आपने कहा था कि नो फीवर, फ्लू एंड रैश। So, by asking जी this मैडम, question that no fever, flu, and rash, what infections you are ruling out? जो जी कि मैडम, इसमें सिमेट्रिकल या कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल कर सकते हैं। मैडम इसमें सारे टॉर्च इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं और इसमें मलेरिया भी करता है टॉर्च में ज्यादा और इंपॉर्टेंट कौन सा होता है जो खास तौर पे आईयूजीआर कर सकता मैडम है? मैडम साइटोमेगालोवायरस, रूबेला हम्म और हर्पीज कर सकता है। रुबेला अगर होता तो अब तक तो बहुत फर्क चीजें होती। जी मैडम, मैडम वो तो और इस तरह आउट हो गया है। हम्म और मैडम मलेरिया कर सकता है। ठीक है, तो उनको हम कोई स्क्रीन करने की जरूरत होगी या नहीं होगी इस केस में? मैडम इस केस में जरूरत नहीं होगी बिकॉज जरूरत नहीं होगी, मैडम ठीक ये है। 32। मतलब दो जी मैडम, दीज आर जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस, लेकिन बेसिकली पेशेंट ने कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दी, कोई ऐसे क्लू नहीं है, तो इसमें हमें उस तरह से करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज बेसिकली द लेट आईयूजीआर। ये अर्ली शुरू से ये नहीं चल रहा, बिकॉज जी इनिशियली एवरीथिंग वेंट नॉर्मली एज असेस्ड ऑन द रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स जो इसके होते रहे। अर्ली डेटिंग स्कैन भी हुआ, फिर उसके बाद एनॉमली स्कैन भी हुआ। अगर से fetal growth is more affected after which gestation time period? मैडम मुझे किस समझ नहीं आई। जी किस जेस्टेशनल टाइम पीरियड के बाद ये फीटल ग्रोथ ज्यादा इफेक्ट होती है? मैडम 32 वीक्स के बाद। नहीं, 26 28 वीक्स के बाद।
क्योंकि देखो बेबी की डेवलपमेंट की या उसकी ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले वाली स्टेज जो है वो है हाइपरप्लेसिया, जिसमें सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, माइटोटिक फिगर्स बहुत ज्यादा होती हैं। देन द सेकंड स्टेज जो कि 20 वीक से लेके 28 वीक्स तक चलती है, दैट इज बोथ हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रफी, बोथ थिंग्स गो साइड बाय साइड। इंडिविजुअल सेल का साइज भी बढ़ जाता है और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ते हैं। और उसके बाद 28 वीक्स के बाद इज द स्टेज ऑफ रैपिड फीटल ग्रोथ। उसका फीटल वेट गेन जो है वो 80% होता ही 28 वीक्स के बाद है। तो मैक्रोसोमिया हो या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो, वो ज्यादातर एविडेंट होती हैं आफ्टर 28 वीक्स। इसमें जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटरनल न्यूट्रिशन भी थी, बिकॉज इफ यू सी दैट हर ओन बॉडी मास इंडेक्स इज लेस 23, तो इसमें कुछ ना कुछ मेल जी मैडम, नरिशमेंट का ये फैक्टर जरूर होगा। अब बाज दफा मैडम शी पेशेंट हैज अ कहता है लो, कि डाइट डाइट को हम उस तरह से देखो, डाइट की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, डाइट की क्वालिटी मैटर करती है। इट दी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कितने को सप्लीमेंटेशन है पेशेंट के अपने फूड में, डेली फूड इनटेक में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मेल न्यूट्रिशन का एलिमेंट है तो दैट कैन अफेक्ट द बेबी डेवलपमेंट या फीटल वेट गेन में इसका किसी हद तक रोल होता है, अगर चेन की रिप्लेसमेंट फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को सही नहीं करती यूजुअली। तो जो 28 वीक से बाद है वो प्योरली हाइपरट्रफी वाली स्टेज होती है, यानी फीटल वेट की। तो मैक्रोसोमिया हो या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो, इसमें असेसमेंट हम 28 वीक्स के बाद ज्यादातर करते हैं। अगर ये क्रोमोसोमल एनोमली होती या कोई अर्ली इन्फेक्शंस होते, जैसे हम टॉर्च इन्फेक्शन की बात करते हैं जिनमें साइटोमेगालोवायरस और टॉक्सो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी जो है वो उसमें शुरू से ये चल रहा होता, उसमें शुरू से सिमेट्रिकल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन चल रही होती है। लेकिन उनके साथ साथ अब इसमें ये भी देखें, इसमें खास तौर पे ये जो इसके पैरामीटर्स हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट टू नो कि इसमें लाइकर ठीक है, सिर्फ इसकी बायोमेट्री इज लैगिंग बिहाइंड, 4 वीक्स लैगिंग बिहाइंड, सो क्लियरली इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्लियरली इसमें कोई ऐसी पैथोलॉजी नहीं है, बिकॉज फीटल डॉपलर फ्लो इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर हमने इसमें प्रिसाइज और फीटल डॉपलर पे भी डिपेंड करता है कि फीटल डॉपलर इसका कौन सा हुआ, क्या कोई प्लेसेंटल कॉज तो नहीं है। अब प्लेसेंटल कॉज अगर हो तो अमूमन हम समझते हैं कि फीटल डॉपलर जो है वो ठीक होगा, बट सम टाइम द सिचुएशन इज नॉट लाइक सिंपल लाइक दैट। तो इसमें अब अम्बलाइकल आर्टरी फ्लो तो हो सकता है इसमें ठीक आए, लेकिन उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव के कितने चांसेस हैं। सो द मोर रिलायबल इंडिकेटर इन दिस केस, जो अगर कोई रिलेटिव हाइपोक्सिया या एसिडोसिस वाली स्टेज चल रही है इसमें, तो उसमें ज्यादा रिलायबल जो डॉपलर फ्लो होगा वो क्या होगा। जी जी मारिया। मैडम, मैडम फिर मिडल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर होगा। हम्म, मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर होगा। तो अगर बिकॉज ये अब थोड़ा सा टेम के भी ऊपर, इंक्रीज, इसमें अगर ये थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल अम्बलाइकल आर्टरी फ्लो के साथ भी मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ब्रेन स्पेरिंग इफेक्ट के तौर पे। जी मैडम, मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो हम टर्म के फीटसिस में करते हैं, प्रेफरेबली एज दिस पेशेंट इज एट 37 वीक्स टर्म पे होगी। तो इसमें मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो should be the next indicator, because if it is if impaired का मतलब है अगर ये बढ़ गया हो, तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ फीटल डिस्ट्रेस या फीटल हाइपोक्सिया या एसिडोसिस या फीटल एनीमिया के केसेस में भी ये होता है। तो इसलिए हम फिर इसको ये करवाएंगे, अगर वो भी ठीक है। देखो हमने डिसाइड करना है अब इसकी ऑनवर्ड मैनेजमेंट, वेदर वी शुड डिलीवर हर नाउ और वी कैन वेट। तो डिलीवर करना है या वेट करना है, वो हमें फीटल सिचुएशन का क्लियरली हमें कुछ मार्कर्स पता चलने चाहिए कि इस फीटस को इन यूट्रो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एज 37 वीक्स आर कंप्लीटेड सो वी सेफली कैन टेक आउट द बेबी, but only when there is some pathological process going on. So if umbilical artery Doppler fails to guide us in that regard, so we can move on to the middle cerebral artery flow.
अब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो हम बेसिकली टर्म के बच्चों में ही करवाते हैं, हम इससे पहले अमूमन 32 वीक से पहले नहीं करवाते कि इसमें भी चेंजेस आती हैं विद द जेस्टेशनल टाइम पीरियड। जैसे अम्बलाइकल आर्टरी फ्लो में चेंजेस आती हैं विद द जेस्टेशनल टाइम पीरियड, कि उसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है उसके साथ उसके हिसाब से प्लेसेंटल ब्लड फ्लो और फिर बाकी फीटल ब्लड फ्लो में भी आ जाते हैं, वीनस जो डॉपलर फ्लो हैं उनमें चेंजेस आती हैं। So for that purpose, we should also ask for the middle cerebral artery flow. तो इसलिए जो है वो हम इसमें वो भी एक करवा लेंगे, जस्ट टू बी श्योर ऑफ दैट एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मली। तो देर इज नो अर्जेंसी टू डिलीवर हर। तो अब इसमें जो है वो बेसिकली हमारा इसमें अभी तक का डायग्नोसिस तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही बन रहा है, बिकॉज इसमें एसिमेट्रिकल या कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस वाली इंडिकेशन नहीं है, क्रोमोसोमल वाली इंडिकेशन इसमें नहीं अभी तक हमें मिली, या क्योंकि कम से कम 20 वीक से नॉर्मली स्कैन तक तो सब चीजें ठीक थी। क्रोमोसोमल अगर होता तो उसमें फीटस का अपना जो इंटरनल पोटेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो इफेक्ट होता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो उसमें फिर क्रोमोसोमल एनालिसिस और उसमें स्वेरली ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीटसेस होते हैं, दो डॉपलर फ्लो एंड एवरी एफ ऑल आर नॉर्मल। तो वो चीज हमें इंडिकेट नहीं होती, ना ही हमें कोई इन्फेक्शंस का कोई इंडिकेशन है। सो अपेरेंटली वी कैन से सेफली दैट दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी। तो अब इसमें दूसरी चीज है कि अब ये पेशेंट हमारे पास 37 वीक्स पे है और हमने इसको लेबल कर लिया कि इसके पीछे कोई ऐसी पैथोलॉजी अभी तक हमें नहीं मिली, अपेरेंटली हमें नहीं मिली। तो इसकी ऑनवर्ड मैनेजमेंट अब क्या होगी? जी मैडम, और मैडम हाँ management. जी। First of all, I will counsel the patient that your baby is your baby is according to history examination and investigation is constitutionally small fetus, but it is good enough that her supply to nutrition to the baby is normal and her Doppler is normal. So I will keep admit the patient into the hospital. Uh, Madam, Why you or will I will admit her? give If everything is and normal, why you will admit her? मैडम इसको स्टीराइड कवर मैडम कहते हैं ना कि स्मॉल फर्गेस्टेशन एंड आईयूजीआर बोथ को 37 से 38 वीक्स के दरमियान डिलीवर कर देना चाहिए अगर डॉपलर फ्लो नॉर्मल भी है तो। नहीं, आपकी अकल क्या कहती है? आपकी अपनी अ, जस्टिफिकेशन के मुताबिक आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? और जो कहते हैं वो कौन कहते हैं? हम अमूमन के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं, और हम ये कभी नहीं जी बताते मैडम। कि कौन कहते हैं। सो मैडम द एक्चुअली रेफरेंस ईबीएम विल में बी भी लिखा कोटेड। हाँ, ईबीएम में लिखा हुआ है कि स्मॉल फर्गेस्टेशनल एज बेबी और आईयूजीआर बोथ को डिलीवर कर हाँ। एक ही सेम मतलब 37 वीक्स पे डिलीवर कर देना चाहिए। लेकिन देखो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है डिलीवर करने का भी, क्राइटेरिया होता है। डेफिनेटली मैडम क्राइटेरिया पे हम बेस करते हैं कि उसको डिलीवर करना है या नहीं करना। तो आप अब क्या करोगे? I will give the I will counsel the patient about plan of the delivery and mode of the delivery and tells them the pros and cons of both CVD and cesarean section. And I will also give the patient a steroid cover, do her CTG, and ask the patient to keep an eye on fetal kick count. And हम्म। then I will नहीं, ये फीटल किक काउंट मेरा ख्याल है अभी तक सो फार इट्स ओके, ऐसा ही है ना? जी और मैडम। सीटीजी भी इसकी शायद ठीक है, या आपने इसको अभी I will सीटीजी आप discuss प्लान करोगे? Madam, now patient is at 37 weeks. I will discuss the plan of the delivery with the patient, हम्म। both हम्म। SVD and cesarean section and her pros and cons. And my first option will हम्म। be पेशेंट कहेगी मुझे नहीं पता, आपने उसको गाइड करना है। first op एंड हाउ यू विल गाइड हर? I will, Madam, और इसमें अब as my patient is 20 years of. जी हम्म। मैडम। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि क्लियरली मैडम इसको आपने नंबर 1 2 3 इसका मैनेजमेंट प्लान हमें बताना है। ठीक है, इसमें जी मैडम, my आपने first इसको plan will एडमिशन
मेरा ख्याल है आप, हाँ जी, आप 1 2 3 मुझे इसका प्लान ऑफ मैनेजमेंट बताओ। जी मैडम, I my first plan will be spontaneous vaginal delivery up to the at least 39 weeks of the gestation phase, and wait for spontaneous onset of the labor. If patient does not went into spontaneous labor, then I will the second option will be induction of the labor, after taking the consent from the patient and एक एक giving मिनट the रुकना, patient यहीं पे रुक जाए। both options. अब ये पेशेंट 37 वीक्स पे है एंड यू विल लाइक टू वेट टिल 39 वीक्स, and how जी you will मैडम। manage the patient in between these 2 weeks I will to ask the confirm the patient to growth come किस for सेक्शन follow पे up ज्यादा at least। जी मैडम, वो एटलीस्ट वो वीक में 2 टाइम्स आए मैडम, क्योंकि अब टाइम के ऊपर है। है। And ठीक है। then I और wait for spontaneous onset of the labor. If patient does not went into spontaneous onset of the labor, then I will ask the patient to for induction of the labor after taking the consent from the patient, that your baby is small for gestational age. I will do the induction of the labor with prostaglandin E2 and tell them the pros and cons of her, and need for emergency cesarean section in case of fetal distress, or one I will do 1-to-1 monitoring, and pediatrician should also be available, and anesthetist should be also be informed in case of ठीक है, emergency, आपने इसको and आपने इसको स्टीरॉयड maintain कवर देना partogram। है या नहीं देना? आपने इसको स्टीरॉयड कवर देना है या नहीं देना? जी मैडम, देना है इसको स्टीरॉयड कवर। तो वो तो आपने वो भी उसका मेंशन जरूर कर दो, क्योंकि बाद दफा हम बहुत सिंपल सी चीज भूल जाते हैं बाकी डिस्कशन के उसमें चक्कर में, तो ये जी भी मैडम। जरूर मेंशन कर दो, मैडम, ठीक है। वो तो तो अभी दे आप देंगे ना इसको 37 वीक्स के हाँ, ऊपर ही। स्टीरॉयड कवर आप अभी दोगे, और उसके बाद इसको इट इज बेटर टू डिलीवर हर एट 39 वीक्स। वो इसलिए कि देखो 33 वीक्स पे अभी है, आप इसको कम से कम आप 39 वीक्स पे इसको दोबारा से स्कैन करके इसका ग्रोथ स्कैन देख सकते हो, बट बाय डेट शी विल बी कंप्लीटेड एट 39 वीक्स। तो वॉट एवर यू कैन गो फॉर जो है वो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें मजीद उसकी ग्रोथ अरेस्ट हुई या ना हुई। लेकिन ये है कि इसमें जो मोड ऑफ डिलीवरी है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्स्टेट्रिक रीजंस ओनली, क्योंकि इसमें आपने पेशेंट की काउंसलिंग तो करनी है कि दो इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड fetuses द रिस्क ऑफ fetal distress इज मोर एज कंपेयर टू द लो रिस्क पॉपुलेशन। तो इसमें थोड़ा सा सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट एज एवरी अदर थिंग इज ओके, सो यू विल गिव हर ट्रायल ऑफ द लेबर। तो इसलिए जो है वो इसमें आप इसको बिशप स्कोर की असेसमेंट पहले जरूर करोगे, एंड देन यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द बिशप स्कोर द मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। और फिर उसके बाद जी इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी सेक्शन, आप उसको सारा जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर नॉर्मली मेंटेनिंग पार्टोग्राम एंड एवरीथिंग जो रूटीन की होती है लेबर में, वो सारी आप मेंशन इसमें करोगे इन कोलैबोरेशन विद द पीडियाट्रिशियन। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने इसमें मेंशन करनी है, क्योंकि इसमें ग्रोथ इसमें क्योंकि पैथोलॉजी भी नहीं है। पैथोलॉजी ना हो तो फिर उसमें फीटल आउटकम इज बेटर, उसमें पेरीनेटल मॉर्बिडिटी के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू द केसेस हु हैव सम पैथोलॉजी बिहाइंड द सीन। तो उसमें जो है वो उस फीटल डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस, ये सब चीज़ों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसमें इसको हम इस तरह से एंड अप करेंगे इस केस को। तो इसमें कोई क्वेश्चन आपका अभी तक मैडम, इसके इस मैंने केस के यही लिए? पूछना था कि इसको 39 तक ही लेके जाना है, इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल फीटर्स को। हाँ, लेकिन देखो कंफर्म्ड आईयूजीआर तो है, तो 39 जी मैम। वीक्स पे भी आप इसलिए ले जाओ कि अभी 33 वीक्स है, मे बी द फीटस ग्रोज मोर। और जितना इसमें और लेट टर्म जो है वो दैट हैज अ बेटर आउटकम एज कंपेयर टू द अर्ली टर्म। अर्ली टर्म पे 37 पे आप डेफिनेटली इसमें कर दोगे, अगर इसका AFI भी कम आता लेस देन 5, जो कि लोअर नॉर्मल लिमिट है ऑफ AFI एट टर्म, या फिर इसके डॉप्लर फ्लो में ST रेशियो इसकी रेस्ड आती, चाहे रिवर्स और एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो ना भी होता, तब भी आप इसको 37 पे कर देते। बट एज एवरी अदर थिंग इज ओके,
except for the fetal biometry which is lagging behind by 4 weeks. तो इसलिए आप इसको 39 वीक्स तक सेफली जा सकते हो along with the fetal surveillance in between this 2 weeks time period. तो इसलिए जो है वो आप इसको 39 वीक्स का एक सेफ टाइम पीरियड इसमें होगा। लेकिन मैडम एक्सक्यूज मी मैडम मैडम जी मैडम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये है कि अगर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल भी आ रहा है तो आपने ऑब्स्टेटिशियन सीनियर कंसल्टेंट से डिस्कस करके स्टीरॉइड कवर लगा के आप उसको 37 पे इंड्यूस एंड डिलीवर करें। ठीक है, देखो जो गाइडलाइन है ना वो ये भी कहती हैं कि अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है तो हर हाल में 34 वीक्स पे डिलीवर कर दो। हमारी जो नर्सरीज हैं, हमारी जो पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट है, एवरी पासिंग डे हैज अ बेटर नियोनेटल सर्वाइवल जब तक के कोई बहुत क्रूशियल रीजन ना हो उसके पीछे। तो हम तो प्रॉम को फिर भी चलाने की कोशिश करते हैं जब 35 वीक्स पे भी हो, तो ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने किया होता है। तो 37 वीक इज अ गुड टाइम पीरियड। अगर कोई उसमें, अब जैसे मैंने इसमें कहा था कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो विल बेटर गाइड यू कि इसमें कोई अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ हाइपोक्सिया या एसिडोसिस तो नहीं चल रहा, तो इसलिए जो है वो उसमें आपको एक मजीद रिफाइंड तरीके से गाइड कर देगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो। अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो भी ठीक है, देन व्हाई टू टर्मिनेट हर एट 37 वीक्स, व्हाई नॉट टू वेट फॉर अनदर 2 वीक्स, माइट भी उसकी फीटल ग्रोथ और मजीद बेहतर हो जाए। अगर उसमें कोई मसला आता है इन बिटवीन इन टर्म्स ऑफ इम्पेयर्ड फीटल मूवमेंट्स और ऑफ सीटीटी और ऑफ बायोफिजिकल प्रोफाइल या फिर उसके डॉपलर फ्लो में भी, एनी टाइम यू कैन टर्मिनेट हर, क्योंकि आपने उसको लेक्सा भी लगा दिया हुआ है। तो मैडम एग्जामिनर अनॉयड तो नहीं हो जाएंगे एग्जाम में कि आप 39 तक लेके जा रहे हो? फिर देखो बात ये है कि एग्जामिनर अनॉय होते हैं जब आप गाइडलाइन से हटके कोई चीज बताओ और फिर उसकी जस्टिफिकेशन भी ना बताओ। ये अस्सलाम बात वालेकुम मैम गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आपने ऑफर करनी है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज वाले को। बेटा, हमारे पेशेंट जो हैं वो दे डोंट नो द डायनामिक्स ऑफ एवरीथिंग, दे डोंट जी नो मैम। द टेक्नोलॉजीज। हमने उनको गाइड करना होता है, उन्होंने हमें गाइड नहीं करना होता। वी कैन जी टेल देम नहीं द मैम, मैं प्रोज यही एंड कह रही हूँ हाँ कि जी अगर गाइडलाइन में रिकमेंड नहीं है, सिर्फ ऑफर लिखा हुआ है 37 पे, रिकमेंड हाँ नहीं जी है। रिकमेंड आईयूजीआर को किया हुआ है। ठीक है। नहीं वो तो खैर चलो आईयूजीआर भी एक है, इसमें आईयूजीआर तो डेफिनेटली है ही है, जी लेकिन मैम। बात ये है कि आप 37 पे करो, 38 पे करो या 39 पे करो, यू हैव टू जस्टिफाई योर डिसीजन, यू जी हैव मैम। टू जस्टिफाई मैडम योर हम डिसीजन। ये मैं बार बार आप लोगों को रीइंफोर्स करती हूँ कि ऑलवेज जस्टिफाई योर डिसीजन। अगर आप मैम फिर 37 भी कर सकते हो तो बाय ऑल मींस यू यू कैन डू इट। अगर आप जी उसको मैम। जस्टिफाई कर सकते हो तो फिर जरूर करो। जी मैम फिर हम अगर इस मैडम हम 37 भी कह देंगे तो मैडम वो ये रॉन्ग नहीं है ना? नहीं, अगर आप जस्टिफाई कर दो, मैं वही तो कह रही हूँ, इस मरीज में सेक्शन भी आप जस्टिफाई कर सकते, डिलीवरी भी जस्टिफाई कर सके, लेकिन आप जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसकी जस्टिफिकेशन में आपने बोलना वही है, क्योंकि उसकी वजह जी आपको मैम। बतानी पड़ेगी, हर हाल में बतानी पड़ेगी। बगैर वजह बताए आप को कैसे आप उसको वो करोगे, कन्विंस कैसे करोगे एग्जामिनर को कि मैं इसको 37 वीक से डिलीवर करने का डिसीजन क्यों ले रही हूँ। आपको फैक्ट्स के साथ उसको साबित करना पड़ेगा कि अगर मैं 37 वीक्स में नहीं डिलीवर करती इस पेशेंट को तो फिर इसमें पेरीनेटल मोर्टेलिटी रिस्क कितना बढ़ जाएगा, ये आपको साबित करना पड़ेगा फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ। और मैडम फिर एक और ये, क्वेश्चन पूछना हाँ जी जी मैडम, ये पूछना है कि अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर हमें पूछें और वो अवेलेबल ना हो तो मैडम फिर हम कहेंगे फिर कि आप हम उसको पहले मिडिल नॉर्मली सेरिब्रल आर्टरी फिर आप उसको नॉर्मल ही कंसीडर करो। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं होता, अगर वो अवेलेबल हो जाता है, बाद दफा अवेलेबल नहीं भी होता, लेकिन जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पज एग्जामिनर आपको अपनी तरफ से कोई फिगर बता देते हैं कि हाँ ठीक है या नहीं ठीक, तो उस पर आपने डेफिनेटली जो वो बताएंगे आपने उसी को फिर लेते हुए आगे डिस्कशन चलानी है। जी मैडम। ठीक है मैडम अगर मैडम अगर उसकी ग्रोथ स्टैटिक है, उसकी ग्रोथ स्टैटिक है और वो 33 से आगे चल ही नहीं रहा, लेकिन हम उसको फिर भी आगे लेके जाएंगे 39। हमें कैसे पता है कि ये 33 वीक से आगे नहीं चला? इट कैन बी अ स्लोड ग्रोथ।
नॉट अरेस्टेड ग्रोथ। अरेस्टेड ग्रोथ हम तब कहते हैं जब हमने उसके सीरियल ग्रोथ स्कैन करवाए हों और उसमें पिछले 3 हफ्तों में कोई ग्रोथ ना हुई हो, दैट इज अरेस्टेड ग्रोथ। अरेस्टेड जी मैडम। ग्रोथ डेफिनेटली टर्मिनेट हर एट 37 वीक। लेकिन चूंकि हमारे पास पिछले ग्रोथ स्कैन अवेलेबल नहीं है, हमें हर 3 हफ्ते बाद वाला स्कैन या हर 4 हफ्ते बाद वाला स्कैन अवेलेबल नहीं है जो कि हमें ये बताए कि ये 4 हफ्ते पहले इसकी ग्रोथ इतनी थी और अब इसकी ग्रोथ ही नहीं है। तो अगर उन 4 हफ्तों में ग्रोथ हुई तो दैट इज स्लोड ग्रोथ, नॉट अरेस्टेड ग्रोथ। और स्लोड ग्रोथ में हमेशा चांसेस होते हैं कि ये मजीद ग्रो करेगा। अरेस्टेड ग्रोथ में चांसेस नहीं होते, देन देयर इज नो फन इन वेटिंग फॉर मोर टाइम पीरियड टू गो अहेड। फिर आपने उसको टर्मिनेट करना ही करना होता है क्योंकि ग्रोथ अब खत्म हो चुकी हुई है। तो इसलिए आप उसको फिर हर हाल में टर्मिनेट करोगे फॉर अरेस्टेड ग्रोथ, नॉट फॉर स्लोड ग्रोथ। क्योंकि ग्रोथ हो रही है ना, थैंक यू ग्रोथ मैडम। पैटर्न पे हो रही है। थैंक यू मैडम। मैडम। हाँ जी, और मैडम कोई हिस्ट्री हेलो। ठीक, करें। मैडम हिस्ट्री का पूछना था, हिस्ट्री ठीक थी? हाँ जी, हाँ जी, हिस्ट्री बेटा ठीक थी। तकरीबन सारी चीजें आपने कवर कर ही ली थी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पेशेंट को खुद भी पता थी। एंड लकीली शी हैड एवरीथिंग अवेलेबल विद हर। जैसे डेटिंग स्कैन था तो आपका वो जो एक मिस्टेकन डेट वाला फैक्टर था वो वैसे भी निकल गया। तो अगर ये वो वाला डेटिंग स्कैन अवेलेबल ना होता तो फिर आपके लिए मुश्किल होती कि उसमें मिस्टेकन डेट्स वाली बात भी होती। तो मिस्टेकन डेट्स भी अगर हो तो उसमें भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी होती है क्योंकि उसने तो मैडम मिस्टेकन डेट बड़ी आसानी से हम कर सकते थे, शायद उसको 1 महीना पीछे अपनी डेट भूल रही है क्योंकि अच्छा इसमें 37 है और 33 है। तो उसमें आपको जस्टिफाई करना और भी जो है वो जरा थोड़ा सा वो हो जाता ट्रिकी, लेकिन मैडम अदरवाइज जो अगर है वो मिस्टेकन डेट्स होती तो उसमें हमें जस्टिफाई करना और भी ज्यादा आसान होता कि हम आगे 2 वीक्स हाँ तक ठीक इसको है, लेके जाना चाहते हैं। हाँ इसको लेके जा सकते हैं क्योंकि ये मिस्टेकन डेट्स वाला केस है, इसमें पैथोलॉजी कोई नहीं है। एज रिवील्ड बाय हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन हमें कुछ ऐसा क्लू नहीं मिला जो कि प्लेसेंटल insufficiency या वो सारी चीजों की वजह बन सके। ठीक है, मैडम हेलो। आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अगर मैडम ये हेलो इस तरह कहती हैं कि स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है और शी इज एडमिटेड फॉर फर्दर वर्कअप मैम एंड इसमें हम मैनेजमेंट। फिर एमसीए डॉक्टर कितना फ्रीक्वेंटली सॉरी एक करवाएंगे? क्वेश्चन एक वक्त में करें। हाँ जी, पहले जो क्वेश्चन कर रहा था पहले वो करें। मैडम मैं कह रही हूँ कि अगर हम उन्होंने कहा प्रेजेंटिंग था आई एम कंप्लेन नॉट हैप्पी विद द जी। मैडम प्रेजेंटिंग कंप्लेन में अगर मैडम हम ये बोलें कि शी इज एडमिटेड फॉर फर्दर वर्कअप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, बजाय कि हम ये कहें कि पेशेंट हैज Patient डिक्रीज patient has perception not of admitted. Patient was a OPD patient and came for evaluation. Patient perceived that her abdomen is growing, हाँ not growing according to वो her ओपीडी description. बेसिस पे जैसे जी कि मैम अगर हम ये कहें कि हाँ अगर जी, हम ये कहें हमें तो एग्जाम में मैडम एडमिटेड पेशेंट्स मिलते हैं ना, तो मैडम हम यही कहें अगर कि नहीं जरूरी नहीं होता, पेशेंट बाद दफा एग्जाम के लिए भी एडमिट किए जाते हैं जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल। और दूसरी चीज ये कि फर्ज किया अगर ये एडमिटेड पेशेंट भी हो तो आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि क्या आपके ख्याल में इसका एडमिशन जस्टिफाइड है। अब एडमिशन करने वाले ने कर दिया लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, तो आप उससे एग्री भी कर सकते हो और आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हो। ये आपके पास जी मैम अथॉरिटी होती है कि जो डिसीजन, इवन मैनेजमेंट डिसीजन, अगर फर्ज किया किसी ने उसका डिसीजन लिया हुआ है कि इसका सजेरियन होना, पेशेंट आपको बताती है कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरा सजेरियन होगा और 1 हफ्ते के बाद, तो देन योर ओन ओपिनियन वुड बी आस्क्ड फॉर। आपकी अपनी क्या राय है इसमें, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी अपनी जस्टिफिकेशन पॉइंट्स क्या हैं, वो तो आपने खुद अपने बताने हैं, वो आपने किसी दूसरे की ओपिनियन पे बेस नहीं करना है। हर एक का अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है। तो इसलिए अगर वो एडमिटेड पेशेंट भी है तो फिर भी आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या इसको एडमिशन की जरूरत थी इस मरीज को। ठीक है मैडम अगर हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ये बोलेंगे कि एडमिटेड फॉर फर्दर वर्कअप एंड मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, तो मैडम क्या ये रॉन्ग होगा? नहीं, देखो एडमिशन सिर्फ उस सूरत में, अब ये अगेन रॉन्ग या ट्रू या फॉल्स या रॉन्ग या राइट वाली एब्सोल्यूट चीज नहीं कोई होती। अब इसमें सही भी हो सकता है अगर पेशेंट कहीं दूर से आया हुआ है और इसके अलावा वो फर्ज किया अगर ये रेगुलर फॉलोअप ना कर रही होती, ये तो रेगुलर फॉलोअप करती रही है, इसके पास हर चीज अवेलेबल है, इसने हर चीज आपको बताई हुई है। लेकिन अगर पेशेंट कहीं दूर से आए, वो मैडम आपके जैसे ये पेशेंट तो वहीं से आई थी, निश्तर कॉलोनी से ही आई थी, तो वो तो हाँ, 10 मिनट का सफर से आई थी, तो इसको तो हम हाँ, ओपीडी पेशेंट पे बिल्कुल कर मैनेज कर सकते सकते हैं। हैं अगर इसलिए पेशेंट 1 और के नहीं, ज्यादा से हम से इस पेशेंट से हट के बात कर रहे हैं ना, जैसे उनका क्वेश्चन है कि क्या ये गलत होता, तो
तो ये गलत ना होता उस केस में अगर पेशेंट कहीं बहुत दूर से आई होती, नॉन कॉम्प्लाइंट होती, उसको घर से लाने वाला कोई ना होता, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री अनबुक्ड पेशेंट वाली होती और ये पहली दफा हमारे पास आई होती और उसको पता ही कुछ ना होता, तो डेफिनेटली फिर आप उसको एडमिट करके उसको एवेलुएट करते, क्योंकि आपको ये खदशा है कि अगर आपने एवेलुएट ना किया तो ये मरीज तो हो सकता है कि ये बाद में कोई आईयूडी के साथ या और किसी चीज के साथ ना आ जाए. So in that case, you can easily justify for her admission. तो एब्सोल्युटली रॉन्ग या एब्सोल्युटली राइट वाली कोई चीज नहीं होती, ये हमेशा पेशेंट के प्रोफाइल और उसके कुछ पैरामीटर्स पे चीजें डिपेंड करती हैं. अब यही चीज इसके, अब ये एडमिशन ऐसे पेशेंट का एक मरीज के लिए सही होगा, दूसरे मरीज के लिए गलत होगा, तो एब्सोल्युटली राइट या रॉन्ग वाला कंसेप्ट फिर खत्म हो जाता है इसमें. तो ये हमेशा पेशेंट की थैंक यू सो मच मैम. और प्रोफाइल पे आप डिसाइड करें. इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिविजुअलाइज द पेशेंट. इंडिविजुअलाइजेशन ये इसी चीज को कहा जाता है. आपने बुकिश पिक्चर आपको कहीं नहीं मिल रही, तो इसलिए आपने जो किताब में चीजें लिखी हुई होती हैं, आपने उसमें से कुछ चीजें पेशेंट ए पे फिट करनी है, कुछ चीजें पेशेंट बी पे फिट करनी है. हर चीज एक ही पेशेंट पे फिट नहीं हो सकती. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अस्सलाम वालेकुम मैम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें मैम. जैसे कि इसके फादर और मदर की हाइट्स नॉर्मल थी और लेकिन इसका बीएमआई 23 था, तो हर इस तरह के पेशेंट को भी हम कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल ही कहेंगे. बाकी सारी देखो, कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल वो है जिसके पीछे कोई डिजीज नहीं है, कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है. अब बायोलॉजिकल जो ग्रोथ पोटेंशियल है बच्चे का वैसे भी लो हो सकता है, जिनमें बच्चों में एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है ना, बिकॉज दिस इज बेसिकली द इंटरप्ले ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल, मैटरनल एंड द फीटल फैक्टर्स which interplay with each other to for the fetal growth. अब उसमें मैटरनल फैक्टर्स में न्यूट्रिशन इज जस्ट वन थिंग, मैटरनल हाइट वेट या पैटर्नल हाइट एंड वेट इज जस्ट वन थिंग, जी मैम. लेकिन उसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं. अब इसमें एस वी कैन सी दैट द पेशेंट हैज अ लो बीएमआई, तो हो सकता है माइक्रो. अब देखो जो न्यूट्रिशन वाली चीज है ना, न्यूट्रिशन हम तो मरीज से ये कहते हैं कि ये खाती हो, सही खाती हो या नहीं खाती हो, या गोश्त फल वगैरह ये खाती है, लेकिन हमें नहीं पता कि हाउ हर फूड इज प्रिपेयर्ड. उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म भी हो जाती हैं. फूड प्रेपरेशन के भी कुछ तरीके होते हैं जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के कुछ तरीके होते हैं. सो दिस इज द इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स विच लीड टू फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल साइज बेबीज. और उसमें खाली एक फैक्टर नहीं होता कि हम सिर्फ मैटरनल फैक्टर पे ही कहें. इनहेरेंटली द जो फीटल का ग्रोथ पोटेंशियल अपना है, इवन इन एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोमल फैक्टर्स, वो भी स्लो हो सकता है. तो इसलिए बाद दफा प्लेसेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं. तो प्लेसेंटल फैक्टर में जरूरी नहीं होता कि उसमें कोई अम्बिलिकल आर्टरी डॉक्टर फ्लो भी मसला हो. उसमें भी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रोग्रेशन ऑफ जेस्टेशनल टाइम पीरियड, उसकी फीटल प्लेसेंटल मैच्योरिटी जल्दी कंप्लीट हो जाती है. और इसके अलावा जो है वो उसमें फिर दैट कैन कॉम्प्रोमाइज द फीटल ब्लड सप्लाई. ठीक है, चले मेरा थैंक यू मैम. अगर एमसी डॉक्टर हमने करवाया है अम्बिलिकल आर्टरी डॉप्लर के नॉर्मल होने के केस में, तो एमसी डॉप्लर हम कितना फ्रीक्वेंटली जो है ना करवाएंगे? डिपेंड्स अपॉन द बेसलाइन डॉप्लर. अगर डॉप्लर फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है ऐसे केस में, लेकिन फीटल ग्रोथ इसमें उस तरह से कम आ रही है जैसा कि इस केस में है, तो उसको हफ्ते बाद कराओ. अगर तो 2 हफ्ते बाद ही कराया जाता है, लेकिन इस केस में आप हफ्ते बाद कराओ, क्योंकि देयर इज क्लियर कट डिलेड ग्रोथ. अब अगर फर्ज किया इसमें एब्सेंट या इसमें डायस्टोलिक फ्लो है लेकिन एब्सेंट नहीं है, रिवर्स नहीं है, तो फिर उसको ट्वाइस अ वीक कराओ. अगर एब्सेंट और रिवर्स है तो फिर उसको डेली कराओ, क्योंकि ये तो अम्बिलिकल आर्टरी के लिए है, लेकिन एमसी डॉप्लर के लिए यही होगा. ये है, एक मिनट बेटा मुझे कंप्लीट करने दे. ये है लेस देन 37 वीक्स. अगर ये फर्ज किया पेशेंट 37 से ऊपर है तो डॉपलर फ्लो रेट आता तो यू जस्ट सिंपली डिसाइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये तो उन केसेस में है जिसमें जो है वो आपने अभी कुछ वेट करना है, प्री टर्म बच्चा है, अभी कुछ वेट करने का आप चाहते हो कि उसमें थोड़ा सा उसको टाइम पीरियड दिया जाए, तो वहां पे आपने फिर डॉपलर फ्लो को इस तरह से टाइम टू टाइम जो है वो आपने इस तरह से सीरियली करवाना है. ठीक है,
मैम एमसीए डॉपलर के लिए भी सेम यही रूल होगा कि जो है अगर MCU नॉर्मल के आता है तो लिए 2 वीकली? हाँ, मतलब 2 वीकली तो नहीं, फिर उसमें देखो उसमें नॉर्मल अगर आ जाता है तो उसमें भी बेहतर होगा फॉर, और डिपेंड करता है जेस्टेशन पे भी, जेस्टेशन पे भी डिपेंड करेगा, और बाकी उसके बाकी जो है उसके कोई कोएग्जिस्टेंट मेडिकल डिसऑर्डर है नहीं है, उन सारी चीजों पे बेस करेगा। क्योंकि बेसिकली मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्लो आपको एंड 2 चीजें बताता है, या तो अंडरगोइंग फीटल हाइपोक्सिया या फिर फीटल एनीमिया। तो इन दिस ब्रेन स्टेन अफेक्ट होता है कि किसी मैडम ये का डॉपलर अगर तो बहरहाल इसमें वेटिंग टाइम पीरियड जब आपने लेना होता है तो फिर आप ये वाली फ्रीक्वेंसी रखते हो, वीकली, ट्वाइस वीकली एंड डेली। मैडम अगर 32 वीक्स पे रिवर्स फ्लो आ जाता है डॉपलर में? मुझे लगता है मैडम का बस खत्म हो गया है, ऑफ हो गया है। सिर्फ मैडम का ही खराब है ये, है ना? यार एमसीक्यू का मैडम तो की आवाज में पता नहीं कब कब चला, कितना देर बाकी लेक्चर्स तो करवाएंगे। सही चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये स्टेरॉइड कवर कब तक देते हैं? मेरा ख्याल है इलेक्टिव डिलीवरी में तो 39 वीक्स तक ही देना होता है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी 34 वीक्स तक। थर्टी सिक्स तो कंसिडर कर सकते हैं।